Good morning everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I given you in the last video class. In the last video class we just completed our exercise 9.4 which is basically based on multiplication of binomial with the binomial. Today we are moving to our next exercise which is totally based on algebraic identities. So let us understand what is an identity. So identity is basically an equation which is true for every value of variables. So identity एक equation है जो ट्रू होती है. आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लें, उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए वो जो कंडीशन है दैट इज LHS एंड RHS बोथ विल बी द सेम. So equation, you know, an expression which contains equal to sign, and it will have a variable also, and if you put any value on that variable and the equation will give you LHS equals to RHS, that is your identity. वो क्या होती है? आइडेंटिटी होती है. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो इस एक्सरसाइज 9.5 में we are going to use. So these are the three identities. How these identities are obtained, that is given in your page number 149. This is basically क्या कर रखा है आपको, मल्टीप्लाई करके बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज फाइंड आउट हो रखी है. जैसे इफ यू से a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था. व्हाट डज दैट मीन? ए अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? एक्स को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एक्स 2 टाइम्स. तो सेम वे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये कैसा आया होगा? वी हैव मल्टीप्लाई a प्लस बी को a प्लस बी से क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई किया. सेम वे अगर हम यहाँ बोल रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? a माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपका क्या निकलेगा? एक्सप्रेशन ये निकलेगा. तो वही बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन यूज करके ये जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज ऑब्टेन्ड. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज योर a प्लस बी होल स्क्वायर, a plus b whole square, which is equals to your a square plus b square plus 2ab. In some book or in your NCERT also it is written a square plus 2ab plus b square. Both are same because addition is your commutative. Addition commutative हो सकता है तो इसको मैं बीच में रख सकता हूँ, इसको मैं एंड में लिख सकता हूँ. तो that doesn't makes this identity wrong. तो a square plus b square plus 2ab will be equals to what? a plus b का whole square. Same way अगर हम बात करते हैं a minus b whole square, so that will be equals to a square plus b square minus 2ab. अगर आप माइनस 2ab को बीच में लगाना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो गुड. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और ये a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे निकला हुआ है? ये आइडेंटिटी कैसे आई है? जब हमने a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिकॉज इट इज होल स्क्वायर, दैट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई it 2 times. Okay, now moving to the third identity, that is a plus b multiply a minus b. Whenever we are getting a plus b multiply a minus b, so that will be equals to what? a square minus b square. जब आपको दो टर्म दिए होंगे, ठीक है, एक बार उसको एडिशन में, दूसरी बार वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, दोनों सॉरी सब्ट्रैक्शन में, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो आपकी आइडेंटिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी कमिंग डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Now we will solving some questions based on these identities. One more identity is there which you will understand in the question number 2. So first of all we are going to have question number 1 of your exercise 9.5, which is based on these three important identities. If you want to see the solution of this identity, how these identities have come, you can see on your page number 149. In this page number 149, the solution how these identities have obtained, it is given in this page 149. It is basically मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है जो आपका LHS में लिखा हुआ है मैंने, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी. इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गेटिंग दिस वन. सेम वे a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करेंगे तब आपको मिलेगा ये, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करेंगे, फाइनल आंसर आपका निकल कर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम two binomials. Now we are moving to the exercise 9.5 question number 1. Now this is the question number 1 of your exercise 9.5, which says use suitable identities to get the product. आपको एक identity use करनी है to find out a product. I am solving the second part of this question number 1, which is 2y plus 5 multiply 2y plus 5. So we have to multiply same term, that is 2y plus 5, 2y plus 5. If I consider this as a and this 5 as b, so this is a plus b. Again 2y I have considered as a and 5 I have considered b. So this is again a plus b multiply a plus b, which is equals to what? a plus b whole square. तो ये हो जाएगा आपका 2y plus 5 का whole square. Okay, now you know what is a plus b whole square.
a plus b whole square is equals to what? This is equals to a square plus b square plus 2ab. So if you open this, so what is a here? अब हमारा a क्या है 2y और b क्या है 5. So this will be equals to 2y whole square plus b का square that is 5 का square plus 2 multiply what is this ab 2 multiply a multiply b. So 2 multiply a is your what 2y multiply b is your what 5. Now we will solve this. So what is 2y square? 2y square का मतलब क्या है 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज योर 4 4 मल्टीप्लाई 5 इज योर 20 एंड वेरिएबल केवल y है तो दैट विल बी y. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस 2y plus 5 multiply 2y plus 5. Since this 2y plus 5 multiply 2y plus 5 means 2y plus 5 whole square, so we can use a plus b whole square for finding out this final product. Now we are moving to the third part of your question number 1. In the third part, it is given 2a minus 7 again 2a minus 7 and you have to find out the product using identity. So if you see, this is your a and this is your b. So this is a minus b. Again here also I have considered 2a as capital A and b7 as capital B. So this is a minus b, again a minus b, which is equals to what? A minus b whole square. So I can write this as 2a minus 7 whole square, and I will going to use which identity? Since a minus b whole square is equals to what? A square plus b square minus 2ab. So I am going to use this identity for opening this. So this will be equals to a is your what? a क्या आपका 2a है, so this will be 2a का whole square, then plus b square is there, so b is our 7, तो plus 7 whole square, then minus 2 multiply what is our a, that is 2a, and what is our b, that is 7. So this will be minus 2 multiply a, that is 2a, multiply b, that is 7. So अब ओपन करते हैं इसे 2a का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे जो नंबर है उसका भी स्क्वायर करेंगे. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, दैट मीन 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 7 मल्टीप्लाई 7 इज योर व्हाट 7 का स्क्वायर, दैट इज 49. यहाँ पे माइनस का माइनस आएगा. 2 मल्टीप्लाई 2 इज योर 4, 4 मल्टीप्लाई 7 इज योर 28. वेरिएबल में क्या है a, तो विल बी 28a. सो दिस विल बी द final product of this 2a minus 7 multiplied 2a minus 7. I hope that you have understood the concept of this question number 2 and question number 3. Now moving to the next part of this question number 1. Now this is the fourth part of your question number 1. It says 3a minus 1 multiply 3a minus 1. So we have to multiply the same term again, and there is a minus sign. If I consider this 3a as capital A and this 1 upon 2 as capital B, again 3a, so I will write in capital A and this is capital B. So this is a minus b, which is equals to what? a minus b whole square. तो ऐसे ही हम इस 3a minus 2 multiply 3a minus 2 क्या लिख सकते हैं? 3a minus 1 upon 2 whole square. ठीक है, तो 3a minus 1 upon 2 whole square will be equals to किसके इक्वल हो जाएगा? a minus b whole square. आपको पता है किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. so that we are going to use here also. so 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a minus 1 upon 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a, that is 3a का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 1 upon 2. ये वाली आइडेंटिटी यूज करें. यहाँ पे a क्या हमारा 3a और b क्या हमारा 1 upon 2. तो a स्क्वायर दैट इज 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 2 a इज अवर 3a, b इज अवर 1 upon 2. अब हम सॉल्व करते हैं. तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 1 upon 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 upon 2 मल्टीप्लाई 1 upon 2. तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज योर व्हाट 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज योर व्हाट 4. तो दिस विल बी व्हाट 1 upon 4. नाउ माइनस 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 1 upon 2. अब देखो ये 2 है और नीचे पे डिनोमिनेटर में भी 2 है. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 1 2, 2 1 2. सो व्हाट वी आर हैविंग नाउ माइनस
1 multiply 3a is 3a only, 3a multiply 1 is 3a only. So this is coming equals to what? 9a square plus 1 upon 4 minus 3a. So I hope you understood how to solve this fourth part also, which is a fraction based question. So now we are moving to the next question, that is the fifth question, which is based on the identity a plus b, a minus b, which is equals to what? A square minus b square. So coming to the next part, that is the fifth part of this question number 1. Now this is the fifth part, which is 1.1 m minus 0.4 multiply 1.1 m plus 0.4. So if you see that this is our identity, which is, if I consider this as a, 1.1 m as a and this 0.4 as b, so this is a minus b, and 1.1 again it is coming, so I have let it as a and 0.4 as b, so this is a plus b. Now we have understand that a plus b, a minus b is equals to what? A square minus b square. ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी जस्ट नाउ, ठीक है. सो a प्लस बी अगर एंड में है और a माइनस बी स्टार्टिंग में, नो प्रॉब्लम. वी नो दैट आइडेंटिटी जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 4 गिव्स यू द सेम वैल्यू एज 4 मल्टीप्लाई 2. तो सेम वे a प्लस बी, a माइनस बी अगर हम इनको आगे पीछे कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दे आर व्हाट? कम्यूटेटिव. So identity here a plus b, a minus b gives you what? A square minus b square. So यहाँ पे हमारा a क्या है? That is 1.1 m और b क्या है? 0.4 m. So this will be equals to what? 1.1 m whole square minus b क्या आपका? 0.4. So this will be whole square. तो 1.1 m square minus 0.4 square. So इसको solve करते हैं. तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? इग्नोर करना है 1 डेसिमल को. तो दिस विल बी 11 मल्टीप्लाई 11, दैट इज 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121. नाउ अब हमें क्या करना है? डेसिमल लिखना है. तो 1.1 में जब हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस में तो इधर पे डेसिमल है, दूसरे प्लेस में भी इधर पे डेसिमल आ जाएगा. तो 1 प्लस 1 दूसरे नंबर में भी इधर पे डेसिमल हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2. तो 2 प्लेस बाद डेसिमल लगेगा, तो दिस बिकम्स व्हाट? 1.21 m का क्या हो जाएगा? m स्क्वायर. ठीक है. सेम वे हेयर ऑल्सो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. सो 60 लिखेंगे, बट डेसिमल प्लेस भी लगना चाहिए. तो डेसिमल एक तो 0.4 में हो गया, दूसरे वाले 0.4 में हो जाएगा. तो 1 और 1 2 प्लेसेस पर डेसिमल लगेगा, तो दिस विल बी 1 2. 6 के जस्ट आगे डेसिमल लगेगा, बिकॉज 1 के जस्ट आगे डेसिमल लगेगा, बिकॉज 2 प्लेसेस में डेसिमल लगेगा. जब हम 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल का आगे कुछ नहीं है, तो आई एम राइटिंग 0.16 एंड दिस विल द फाइनल आंसर फॉर दिस 1.1 m minus 0.4 multiply 1.1 m plus 0.4. So now moving to the next question. That is 8th question, sorry 6th question. आप 8th 7th और 8th खुद कर लेंगे सेम वे. उसके बाद हम 9th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. Now this is the 6th part, which is a square plus b square multiply minus a square plus b square. If you see this question, so if I let this, ये तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ, जस्ट इनको कम्यूटेटिव यूज करता हूँ. इसमें कम्यूटेटिव यूज करने का मतलब, यहाँ पे देखो माइनस पहले पे आ गया है, और ये आपको अगर देखा तो ये हमारी आइडेंटिटी बन सकती है a प्लस बी, a माइनस बी वाली. तो मैं पहले इसको कम्यूटेटिव यूज करके इनको आगे पीछे कर सकता हूँ. तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसमें बी स्क्वायर आगे आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ अब मैं देखो, दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अगर मैं इस बी को कैपिटल ए लेट करता हूँ और इस ए को, ए स्क्वायर को कैपिटल बी लेट करता हूँ, तो दिस इज ए प्लस बी. ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी. सेम वे मैंने बी स्क्वायर को कैपिटल ए लेट किया हुआ है और इस ए स्क्वायर को कैपिटल बी लेट किया हुआ है. तो दिस बी स्क्वायर बिकम्स व्हाट? कैपिटल ए एंड दिस ए स्क्वायर बिकम्स व्हाट? कैपिटल बी. बीच में साइन किया ए माइनस बी. सो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है. तो हमारा ए क्या है? हमारा ए इज अवर बी स्क्वायर. सो आई एम राइटिंग दिस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. Okay, then minus sign. What is our b? b is our a square, so this will be a square का whole square using this identity. Okay, now अभी आप इसके जस्ट बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ेंगे. तो उसमें आपको, आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और अभी जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर होगी उसमें पढ़ेंगे. अगर आपके पास एक एक्सपोनेंट है a टू दी पावर x, उस एक्सपोनेंट की भी पावर है आपके पास व्हाट? y. तो दिस इज a टू दी पावर x टू दी पावर होल पावर y. तो इसमें क्या होता है? आपकी जो पावर होती है मल्टीप्लाई में चली जाती है. तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई y. तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो लॉ था किसका? एक्सपोनेंट का लॉ, जिसमें a टू दी पावर x टू दी पावर y है. तो दैट विल बी, इन दैट केस जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई y. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी b
टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज करी यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू वट ए टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई वाई, या तो आपने 7th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी या अब आप एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ेंगे। तो दिस इज बी टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज बी टू दी पावर 4 minus a to the power 2 multiplied 2 that is a to the power 4. So this will be the final answer for this question number 1 6th part. I hope you understood. Now we are moving to the next part, that is 9th part. Now this is the 9th part of your question number 1 which includes fractions. So this is x upon 2 plus 3y upon 4, then again multiply x upon 2 plus 3y upon 4. So here a multiplication of same बाइनोमियल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, बट कौन सी, बीच में प्लस साइन है तो दैट विल बी प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो दिस इज एक्स प्लस 2 सॉरी एक्स अपॉन 2, अगर मैं एक्स अपॉन 2 को ए कंसिडर करता हूँ, 3y अपॉन 4 को बी कंसिडर करूँ, दिस इज ए प्लस बी। सेम वे एक्स अपॉन 2 को ए कंसिडर किया तो यहाँ भी यही रहेगा, 3y अपॉन 4 को बी कंसिडर किया तो दैट इज बी ओनली, सो दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी। सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज योर वट ए प्लस बी होल स्क्वायर, और वो आइडेंटिटी है आपकी कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। शुरू करते हैं। a इज अवर एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2 को होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज b इज अवर 3y अपॉन 4, तो 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर देन प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a इज योर x अपॉन 2 and b is our 3y upon 4. Now we solve it, x upon 2 whole square, that means x का square upon में 2 का square, तो x का square क्या हो जाएगा x square and 2 का square कितना हो जाएगा 4, तो this is x square upon 4 plus 3y upon 4 का भी square करना पड़ेगा, तो this will be 3y का square that is 3 का square 9, y का square कितना हो जाएगा y square upon में 4 का square कितना हो जाएगा 16, तो this is 9y square upon 16 plus, अब इसको solve करते हैं, this is 2 1 2, 2 1 2, अब कट रहा है नहीं कट रहा, तो this 1 multiply 3 is your what 3 and x multiply y is your what xy. Same way denominator में भी 1 multiply 4 is your 4 only. So this will be, that is x square upon 4 plus 9y square upon 16 plus 3xy upon 4 will be the final answer for this multiplication, x upon 2 plus 3y upon 4 multiply x upon 2 plus 3y upon 4. So I hope that you have understood the concept of this question number 1. So the remaining part of question number 1, that is the homework for today, and also the question number 3, जो question number 3 है, जो आपका totally किसमें based है, based on the direct identities of a plus b whole square, a minus b whole square. So you will do by yourself as a homework, question number 3 whole part and question number 1 के जो remaining part बचे हुए, that you will do in your today's weekend homework. So with this we finish up your today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.